Hello friends, this is Vidyasagar Moon again. Welcome to the English mentoring classes. Today we shall be learning about something which is again very important and fundamental to the understanding of the English language. Now, before we delve into the subject, which is, as you can see, the case or the noun case, let me tell you something which is very important and fundamental. Now, the first thing is the understanding of noun case is precisely important not only with respect to how a noun behaves with respect to a verb in a sentence, or a pronoun behaves with respect to a verb in a sentence. Rather, the understanding of the noun case primarily involves a better understanding of two more things, and they are change of voice and change of speech. What I mean is, when we move forward and start learning voice change, first we need to identify whether a particular sentence is in the active voice or in the passive, and then we need to understand and we need to learn about the various steps involved in converting a sentence from an active voice to the passive, or vice versa. And again, like I mentioned, it is also imperative, or the understanding of the noun case is imperative for the understanding of the change of speech. And what do you mean when I talk about the change of speech? I am talking about the direct speech and the indirect or the reported speech. So, the understanding of noun cases or noun case is really important and fundamental to the understanding of the English language. My dear friends, today we shall learn about the noun case. In some of the grammar books, you will find that there are 4 different kinds of cases. In some, you will find that there are 3. Well, we shall learn about all of them, and today we shall devote our time in learning about the first 2 kinds of the noun case. The first one is the nominative case, and the second is the objective or the accusative case. Now, before again we start discussing about noun case in detail, like I said, there are 2 things primarily important and that goes behind, or that go behind the case, the noun case, and those are the noun itself and the pronoun. Noun, we have already understood, we have discussed about nouns and pronouns and adverbs and adjectives in our parts of speech lecture. Now here we will be talking about these 2 parts of speech, the noun as well as the pronoun. Now the pronoun, what role does the pronoun play? Obviously, when we do not intend to mention a noun, we use a word in place of it, which is called as a pronoun. Primarily or technically, there are 7 pronouns. The rest of the pronouns are nothing but variations of any of these 7 pronouns. Now, what are the 7 pronouns? He, she, we, they, it, so on and so forth. There are 7 pronouns, correct? Now, the 7 pronouns are the ones which are important with respect to the noun case, correct? ये जो 7 प्रोनाउन हैं, ये भी जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं. अभी, now you will be able to appreciate when I tell you why it is important to go through the first chapter, that is the sentence, and why is it important to be able to identify the subject and the predicate in a sentence. क्यों? क्योंकि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो generally we talk about a noun or a pronoun in any form, right? तो यहाँ पर भी जब हम नॉमिनेटिव केस या एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं दोनों चीज़ों की बात हम करेंगे. नॉमिनेटिव केस में हम उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल या व्यवहार होता है. जब हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, तब हम उस नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जो कि सब्जेक्ट में नहीं बल्कि प्रेडिकेट में है. समझ में आई बात? तो द फर्स्ट थिंग, let us go through the definition
or the understanding of the nominative case. Now, what is the nominative case? A noun or a pronoun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb and it always comes before the verb. There are two understandings. बच्चे यहां जरा आप गौर फरमाएं. A noun or a pronoun is said to be in the nominative case if it, यहां पर ये it किसकी बात कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहा है. If the noun or pronoun is the subject of a verb. Now when you are talking about a noun or a pronoun being the subject of a verb, obviously you are talking about a noun or a pronoun being present before a verb. जब आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी एक क्रिया का विषय है, तो ये साधारण समझ है या ये साधारण सी बात है कि वो जो संज्ञा या सर्वनाम है वो विषय तभी बन पाएगा जब वो उस वाक्य के वर्ब से पहले आए. ठीक. और उसी की बात, उसी की उल्लेख दूसरे भाग में की गई है. इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब. तो ये जो इट है वो क्या है? वापस फिर से नाउन और प्रोनाउन. नाउ दैट नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑब्वियसली कम्स बिफोर द वर्ब ऑलवेज एंड एट ऑल टाइम्स. ठीक. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ द एग्जांपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से Ram is an intelligent man. ठीक. Ram is an intelligent man. सोच लीजिए मैं कह रहा हूं Ram is an intelligent man. ठीक. Now in this case, first हमारा काम क्या है? केस समझने से पहले हम ये समझें कि इस वाक्य में विषय कौन सा है या सब्जेक्ट कौन सा है. जाहिर सी बात है कि राम सब्जेक्ट है ना. उसके बाद जहां से वर्ब शुरू होता है वो हिस्सा या वो भाग उस वाक्य का प्रेडिकेट है या विषय वस्तु है. सो इज एन इंटेलिजेंट मैन इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस. सो व्हाट डज इट टेल यू? दैट दिस नाउन or the word Ram, of course it's a proper noun, it is the name of a person or an individual. Now this noun is in the nominative case in this sentence. Why? Of course because it is the subject and it comes before the verb. This is the verb, right? Now in this case the noun Ram is in the nominative case. And why do we call it the nominative case? Because it names the subject. The noun or the pronoun used in the sentence names the subject, correct? And hence it names the subject with respect to the verb. That is the reason why it is called as the noun which is in the nominative case. आप कोई भी सेंटेंस ले लो जहां पर आपको ये तीन सवाल आए. ये तीन सवाल क्या क्या सवाल हैं? Who, what और which. और यहां पर जरा गौर फरमाएं, प्लीज फोकस हियर. व्हेन यू गेट दीज थ्री क्वेश्चंस, who, what and which, but there is a condition. All these questions must refer to a noun or a pronoun, and that noun or pronoun must be the subject of a sentence coming before the verb. In that case and only in that case, that noun or pronoun is said to be in the nominative case. मैं फिर से दोहरा रहा हूं. जब आपको ये तीन सवाल आपके मन में आएंगे उस सेंटेंस को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल राम इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो सवाल क्या होगा? Who is an intelligent man? तो ये जो who आया ये उस नाउन या प्रोनाउन की बात करेगा जो कि सब्जेक्ट है उस वर्ब का. वर्ब से पहले आया. वर्ब क्या है? इज. यहां पर
तो ये जो शब्द हु या ये जो प्रश्न हु, ये हमको बताता है एक संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कि उस वाक्य का विषय है और क्रिया से पहले आता है, अतः वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा। हेंस दैट नाउन और दैट प्रोनाउन will be in the nominative case. My dear friends, please understand this. It might not be, or rather it is not as important to remember the name nominative case, but it is important to understand as to when a noun or a pronoun takes the form of a nominative case. ये ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ जो लोग खास करके हो सकता है कि एक जनरल मीडियम स्कूल के बैकग्राउंड से हो। नो ऑफेंस हियर, हर एक स्कूल में एक ही तरीके की पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चे ये जरा सा जहन में रखना जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट इफ यू आर नॉट दैट फ्लुएंट विद द सेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देन प्लीज कीप इट इन माइंड कि हमारा दिमाग हमसे क्या कहता है कि हम नियम याद रखें। आप नियम याद मत रखो, आप ये समझने की कोशिश करो कि जो मुझे बताया गया वो क्यों है और उसके रूप क्या हो सकते हैं, उसकी जो यूटिलिटी हम जो कहते हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है जिंदगी में। ठीक, तो भाषा का जो प्रयोग होता है वहां पर एक, अगर हम संज्ञा की बात कर रहे हैं या सर्वनाम की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, विशेषण की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो चीजें जिनकी बात हम कर रहे हैं उनको लेकर के रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम उस भाषा में या अंग्रेजी में बात करते हैं उसका इस्तेमाल या व्यवहार कैसे होता है, ये याद रखना या ये सीखना ज्यादा जरूरी है, इससे कि हम किसी का डेफिनेशन या किसी का नाम याद रखें, है ना। सो इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द नॉमिनेटिव केस, ऑफ द एक्यूजेटिव केस, द ऑब्जेक्टिव केस, द आइडेंटिव केस, ये सारा आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि अगर ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है एक सेंटेंस का और वर्ब से पहले आ रहा है, जिसको हम हु, व्हाट, व्हिच इन 3 सवालों से बता पाएंगे, उल्लेख कर पाएंगे, तो उस केस में वो नाउन या प्रोनाउन, दैट नाउन और प्रोनाउन विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। गॉट माय पॉइंट? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोनाउन। करेक्ट? लेट अस सिंपली रिमूव राम एंड पुट ही या फिर शी, लेट अस से शी यहां कह देंगे और वहां पर मैन की जगह वुमन कर देंगे, ठीक है, या फिर लेडी कर देंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, सो ऑब्वियसली द प्रोनाउन शी इज इन द नॉमिनेटिव केस। आई बात समझ में? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव और द एक्यूजेटिव केस। Got my point? All right. बच्चे, by the time I write down the definition of the accusative or the objective case, please try to think about examples of sentences wherein the noun or the pronoun is in the nominative case. आप लोगों के लिए बेहतर होगा, समय का भी जो इस्तेमाल है हम बेहतर कर पाएंगे। Now, I am writing down the accusative case. It is also called as the objective case. Before getting into the definition of the objective or the accusative case, I would like to talk about the object in a sentence. मैंने सेंटेंस चैप्टर जब आप लोगों को कोर्स करवाया था वीडियो लेक्चर में, तब मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें। थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा यहाँ पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट बताते हैं, साधारणतः हमको ये हमारे मन में क्या आता है कि भाई किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम नॉट नेसेसरीली किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि उस वाक्य में ऐसा कुछ या ऐसा कोई है क्या जो कि एक ऑब्जेक्ट का रूप ले सके। किसके संबंध में, किसके संदर्भ में? सब्जेक्ट के संदर्भ में और वर्ब के संदर्भ में। तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के संपर्क में या संदर्भ में या संबंध में अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष, कोई पशु, कोई वस्तु
कोई चीज, कोई भावना, कोई विचार, अगर ऐसा कुछ हो किसी वाक्य में, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ बिफोर आई डिस्क्राइब द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, it is also quite possible, rather most often than not, it also happens that there are more than one objects found in a sentence or present in a sentence. In that case, it is very, very important to identify the direct object first. And why is it necessary? Because, like I told you right at the outset of this video lecture, when we come across voice change or when we come across speech change from direct to reported, from reported to direct, active to passive, passive to active, so on and so forth, it becomes really, really handy if we are able to identify whether an object is the direct or the indirect one in the sentence. And always it is a rule. What is the rule? It is a cardinal rule that first we always interchange the direct object with the subject first if there are more than one objects in a sentence. After changing the direct object or after interchanging or replacing the direct object with the subject in the sentence, we then go forward and change or interchange or replace the indirect object with the subject in the sentence. ठीक? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, पशु, चीज, वस्तु, विचार, कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में और साधारण सी बात है वो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही होगा, तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में, तो आपको इस बात में गौर फरमानी पड़ेगी कि जो इंसान के नाम से कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई संज्ञा या सर्वनाम हो, या किसी जीवित वस्तु, किसी पशु, पक्षी, इन सब चीजों के बारे में अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम आपको ज्ञात देता हो, बताता हो, तो याद रखिएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? अगर किसी वस्तु के बारे में हम बात करें, अगर किसी चीज के बारे में हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द थिंग, एन ऑब्जेक्ट, अ मटीरियल, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। समझ में आई बात? जैसे अगर व्हाट आया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हु या हुम आया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्यूजेटिव और द ऑब्जेक्टिव केस। देयर इज अ रीजन व्हाई द एक्यूजेटिव केस इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? अब तक तो आपने फर्ज कर भी लिया होगा, जान भी लिया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है ये केस, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नाउ a noun or a pronoun, a noun or pronoun is said to be in the accusative case या फिर ऑब्जेक्टिव केस if it is the object of the verb, it always comes after the verb. Got my point? A noun or a pronoun is said to be in the accusative case if it is the object of the verb. उसके बाद it always comes after the verb. अभी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में तभी होता है जब वो माने ये नाउन या प्रोनाउन। ठीक? ऑब्जेक्ट जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के
अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कौन, जो नाउन या प्रोनाउन अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और वो हमेशा, वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा उस वर्ब के बाद ही आएगा, या फिर उसका जो पोजीशन है सेंटेंस में वो हमेशा वर्ब के बाद ही होगा. इन दैट केस अलोन a noun or a pronoun is said to be in the objective or the accusative case. Got my point? Let us take an example. Fair and square, straight enough. हम एग्जाम्पल लेंगे. क्या होगा जरा सा समझिए. कोई भी सिंपल सेंटेंस आप अपने से बना सकते हैं. उस सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक my teacher gave me a pen or book. Now in this sentence, obviously my teacher is the subject, gave is the past form or simple past form of the base verb give. So this is the verb, and ये तो देखिए जरा, मी, पेन और बुक. मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट यहां पर एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. पहले हमेशा जो वस्तु होती है या चीज होती है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट को हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो विथ मी वी कैन नॉट यूज द क्वेश्चन व्हाट, करेक्ट, बट विथ दिस वी कैन यूज व्हाट. तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन या बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. करेक्ट. इन दिस सेंटेंस बोथ पेन और बुक एंड मी आर द नाउन्स यूज्ड इन द एक्यूजेटिव और द ऑब्जेक्टिव केस बिकॉज दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब gave and they are present after the verb gave, and hence pen, book or me are in the objective or the accusative case. And what are the questions that we can assume with respect to a noun or a pronoun being in the accusative or the objective case? They are whom, not who. Whom, then what, and then which. What or which कॉमन है एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केस में. डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों वर्ब के बाद आएंगे, और ये चेंज होगा, ये हु नहीं होगा, हुम होगा. क्यों, सवाल पूछें जरा. माई टीचर गेव मी अ पेन और बुक. ना ये नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, हु गेव मी अ पेन और बुक, माई टीचर. सो दिस नाउन और प्रोनाउन इज इन द नॉमिनेटिव केस. बट अगर हम इन दोनों की बात करें, ये जो नाउन्स की बात करें, तो क्या होगा, whom did my teacher give a pen or book? Me, है ना. तो whom आ गया, तो ये एक्यूजेटिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है me यहां पर. अगेन, what did my teacher give me? My teacher gave me a pen or a book. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दोनों के दोनों me या फिर पेन और बुक, दोनों के दोनों जो वर्ब है गेव के बाद आ रहे हैं, इसीलिए बोथ ऑफ देम आर इन द ऑब्जेक्टिव और द एक्यूजेटिव केस. गॉट माय पॉइंट? आई हैव बीन ट्राइड टू बी एज स्लो एंड एज सिंपल इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ the learning that we have done today. My dear young friends, please go through the video lecture carefully, do your exercises well, try to come up with as many sentences of your own as possible, because that is the only way how you can better and improve upon your own understanding of the English language and better your own language skills. Having said so, please do subscribe to this YouTube channel for further notifications and video lectures. Thank you. Stay home and stay safe.